A very warm welcome to all my students. Today we are going to start our next unit, that is the unit third, which includes the endocrinology part. So in this unit, first of all, the topic is hormonal control of gametogenesis. So we all know that gametogenesis is the formation of gametes, that is sperm and ovum. Okay, so the formation of sperm is called spermatogenesis, spermatogenesis, and the formation of ovum is called oogenesis. So how this spermatogenesis is controlled and how this oogenesis is controlled by the hormone, we are going to discuss today. So first of all, we will start the spermatogenesis. Spermatogenesis, this is the formation of sperms. Okay, so we already know that the spermatogenesis is divided into two phases. One is formation of spermatid and second is spermiogenesis. So in this formation of spermatid, we know that the the spermatids are formed from the spermatogonium. So if I draw a diagram, I don't need to discuss, but I'm just giving you an idea so that you can recall or revise the topic. We all know that this is the primordial germ cells. From these primordial germ cells, primary oocytes are formed. Primary oocytes are formed. From this primary oocytes, type 1, type spermatogonium type A, type 2, primordial germ cells will form the spermatogonia. So I forget to write that spermatogonia. फिर उस spermatogonia से बहुत सारे टाइप्स के spermatogonia फॉर्म होते हैं. दैट इज टाइप ए, A1, A2, A3, A4, then finally B1, then primary spermatocyte, primary spermatocyte, then उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी spermatocyte. Then from this secondary spermatocyte, यहाँ बना देता हूँ मैं, spermatid is formed. Spermatid is formed. From this spermatid, final, the sperm is formed. So up to this stage, it is called the formation of spermatid, and transformation of this spermatid into sperms or spermatozoa is called spermiogenesis. So spermiogenesis is the formation of mature sperm or the formation of tail, in which the tail is formed, and many changes we're gonna see in this spermiogenesis process. But now, just for recall your revision, just focus on the different stages. So first I have told you that the spermatogenesis mainly occurs in the टेस्टिस. ओके, कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है.
विच इज़ ए मेल गोनाड, और टेस्टिस में मेनली जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसमें होता है स्पर्मेटोगोनिया, विच इज़ द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वहाँ पे होता है। तो दिस स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, ठीक है, दैट इज proliferation phase, proliferation phase, then second is growth phase, then third है that is the maturation phase। जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज़रा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आपको पता है प्रोलिफरेशन फेज में क्या होता है, प्राइमरी जर्म सेल में से स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया में से टाइप 1, टाइप A2, टाइप A3, टाइप A4, B1, B2। तो इस तरीके के स्पर्मेटो गोनिया फॉर्म हो रहा है। देन फाइनली B2 इज कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है B2 है, B1 और B2, दिस विल अंडरगो cell growth process in which the cell increases in its size due to the इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। अब यहाँ तक प्रोलिफरेशन फेज था A4 तक, उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा। देन उसके बाद जब इसका डिवीजन होगा B2 का, किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज बोलते हैं, ठीक है। देन प्राइमरी से फाइनली द स्पर्मेटिड, तो यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, मेचुरेशन फेज बोलते हैं। उसके बाद दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट होगा, जिसमें ये जो यहाँ तक स्पर्मेटिड फॉर्म हुआ है, बट इट डजेंट हैव ए टेल, तो ये इट कैन नॉट मूव। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होने ज़रूरी है ताकि वो एक मोटाइल स्पर्म वहाँ पे फॉर्म हो सके, एक मेच्योर स्पर्म फॉर्म हो सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट होता है। तो बिफोर गोइंग टू द हार्मोनल कंट्रोल, मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, किसका, मेनली जो गोनाड्स का मैं टीएस दिखा देता हूँ आपको, पूरा गोनाड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टीएस ऑफ द टेस्टिस, जहाँ पे आपको ऐसे राउंड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। दो राउंड स्ट्रक्चर्स आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जिसमें तो मैं सर्टुली सेल्स को मैं अलग कलर के साथ डिनोट करता हूँ, दैट इज़ द ब्लू कलर, ताकि आप इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सके हमारे स्पर्मेटोगोनिया से या प्रिमोडियल जर्म सेल से, ठीक है। सो दीज आर द साइट्स ऑफ oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, मैं सिर्फ एक का बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा। So these are the spermatozoa। तो ये जो ऊपर के पार्ट है, दीज आर द स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया टाइप A, टाइप 2। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब आप टीएस देखोगे, ठीक है। तो इनके बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड सेल्स भी रहते हैं, और कुछ टाइप्स के सेल्स रहते हैं। और आपको जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, दीज आर द सर्टोली सेल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट्स टू द स्पर्म सेल्स। एंड ये जो रेड सेल्स है आपको देखिए, दीज आर बिटवीन द स्पेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स, और आल्सो नोन एज लेडिक सेल्स, ठीक है। तो ये दो सेल्स पाए जाते हैं मेनली गोनाड्स में। और अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे, जस्ट दिखाने के लिए, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन उसके बाद जो आपको सेंटर में दिख रहा है, दीज आर द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। सो दिस इज द टीएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको
और इजी हो जाए किसमें समझने के लिए। सो हमने देखा स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन में हमने प्रोलिफरेटिव फेज देखा, ग्रोथ फेज देखा, देन मेचुरेशन फेज देखा, देन उसके बाद हमने देखा दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन फेज, दैट इज़ द स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैं ये जो स्पर्मियोजेनेसिस इसमें आपको क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल फिलामेंट एंड टेल स्ट्रक्चर, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रानियस साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म हमको ज़रूरत नहीं है वो वहाँ से निकल जाता है, एक्रोसोम वहाँ पे फॉर्म होता है, गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम फॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रियल है वो टेल में आ जाते हैं ताकि वहाँ पे टेल फॉर्म हो सके और टेल को एनर्जी प्रोवाइड कर सके ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजीली ट्रेवल कर सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। देन उसके बाद और एक आता है स्पर्मिएशन। इन दिस स्पर्मिएशन is the process by which the matured sperms are released from Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubules, ठीक है। तो seminiferous tubules में ये जो स्पर्म से वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, कहाँ से, सर्टोली सेल से वो, या इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से जैसे जैसे वो अंदर आएंगे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोलेंगे। तो अब आज अभी हम पढ़ेंगे दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज़ द ग्रोथ फेज, दैट इज़ ग्रोथ फेज है या प्रोलिफरेटिव फेज है या स्पर्मियोजेनेसिस है, ये सब कैसे कंट्रोल होता है और कौन से हार्मोन्स है जो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मेनली कुछ हार्मोन्स रहते हैं जो इसको कंट्रोल करता है। सो दोज हार्मोन्स आर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है, विच इज रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस थैलेमस, ठीक है। तो GnRH मेनली मेल में भी रिलीज होता है और फीमेल भी रिलीज होता है, कहाँ से, मेनली द फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। देन दिस GnRH मेनली एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन, दैट इज द, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। वन इज़ द एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकंड इज़ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये GnRH कहाँ पे जाता है, मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है और वहाँ से और दो हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज़ द FSH एंड थर्ड इज़ द LH, ठीक है। इसको LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है मेल में, या इसको ICSH भी कहा जाता है, दैट इज़ द इंटरस्टिशियल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन में आपको दो हार्मोन आते हैं, LH एंड ICSH, ठीक है। देन अब हम देखेंगे किस तरीके से ये जो हार्मोन्स है वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। तो आपने यहाँ पे इसको आप याद रखो, ठीक है, दैट इज़ द सर्टोली सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो मेनली स्पेनिफेरस ट्यूबुल में प्रेजेंट है। और अभी लिडिक सेल्स या जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करो क्योंकि मैं डायग्राम मिटाने वाला हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले जब अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है इट स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी गेन होने के बाद ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें मेल में तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं होता है। अब प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, एक्चुअल में प्यूबर्टी के बाद जो हार्मोन है दैट इज़ द GnRH, दैट इज़ द गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है आफ्टर द प्यूबर्टी। सो दिस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, कहाँ पे एक्ट करता है ये, इंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ द हार्मोन दैट इज
FSH and LH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये फीमेल में भी सेम है, फीमेल में भी FSH रिलीज होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम ICSH भी मेंशन कर सकते हैं। तो मेल में हम मेनली इसको ICSH बोलते हैं क्योंकि ये इट एक्ट्स ऑन द इंटरस्टिशियल सेल, दैट्स वाई इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहा जाता है। सो अगर हम पहले देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और द इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इट बाइंड्स विद द सर्टोली सेल्स। तो ये FSH मेनली कहाँ पे बाइंड होता है, मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था, दैट इज सर्टोली सेल्स। जो सर्टोली सेल्स हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाता है, वहाँ पे जाके ये बाइंड हो जाता है एंड स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियाज पे एंड इंड्यूस द प्रोलिफरेशन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद ये जो FSH है वो स्पर्मेटोगोनिया का प्रोलिफरेशन करता है, दैट इज द डिवीजन करा देता है किसका, स्पर्मेटोगोनिया का। तो आपका पहला फेज स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोलिफरेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। साथ साथ में इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ इस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। तो ये साथ साथ में क्या करता है, जो सर्टोली सेल्स है वहाँ से और दो हॉर्मोन्स का रिलीज कराता है, दैट इज द वन है इस्ट्रोजन एंड दूसरा है दैट इज द सर्टोली सेल्स, सॉरी दूसरा है दैट इज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे, इसको अब थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, फुल डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पे। सो दिस इज द हाइपोथैलेमस, GnRH रिलीज होता है यहाँ से। सो दिस GnRH विल एक्ट ऑन द this GnRH will act on the anterior pituitary. So this is the anterior pituitary, this is the posterior pituitary gland, pituitary. Okay, so this GnRH will act on the anterior pituitary and causes, तो ये यहाँ से आता है यहाँ पे इस anterior pituitary पे, and causes the release of the hormone that is the FSH, and the second is LH या ICSH, ठीक है। सो दिस FSH मैंने आपको कहा मेनली एक्ट ऑन द सर्टोली cells and causes the release of some hormones, that is एक तो इनहिबिन ये रिलीज करता है, दूसरा है दैट इज द ABP जिसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और एक है एक्टिविन, ठीक है। सो एक्टिविन और इनहिबिन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। तो एक्टिविन कॉजेज द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेनली जो बीटा पार्ट है दैट इज, और साथ साथ में ये सर्टोली सेल का प्रोलिफरेशन भी करता है। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको इंड्यूस करता है कि जो FSH है इसके रिलीज को ये रोक दे, दैट इज इट कॉजेज द स्टॉपेज ऑफ द रिलीज ऑफ FSH, ठीक है। तो FSH जो रिलीज हो रहा है इन एंटीरियर पिट्यूटरी से वो रुक जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम बाद में देखेंगे वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। सो फिलहाल आप इतना याद रखो कि ये जो तीन हार्मोन्स है वो रिलीज करता है, दैट इज़ द इनहिबिन, ABP और एक्टिविन। तो इनहिबिन मैंने आपको बताया, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये क्या करता है, मेनली टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है कहाँ पे, जो सर्टोली सेल्स है उसके आसपास, या हम ऐसा बोल सकते हैं
this inhibin or this androgen binding protein causes the concentration of testosterone in the seminiferous tubule. Okay, so whenever the concentration of testosterone and ABP increases beyond the threshold level, inhibin inhibits the anterior pituitary and thus decreases the release of FSH and LH, consequently decreasing testosterone and antigen binding प्रोटीन. ठीक है, तो हम वो देखेंगे बाद में वो नेगेटिव फीडबैक में. तभी फ़िलहाल यही याद रखना कि इनहिबिन, एबीपी और एक्टिविन रिलीज होता है. सो एफएसएच मेनली जो उसका पहला मैंने फंक्शन कहा, इट कॉजेज द इनिशिएशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोजेनेसिस का वो इनिशिएशन करता है, या हम उसको क्या बोलेंगे, इट्स कॉजेज द secretion of some hormone from the Sertoli cell, that is the inhibin, AVP and activin. या हम ऐसा बोल सकते हैं, FSH acts on Sertoli cells and release ABP and inhibin. When the product of reaction inhibits the reaction in which is called negative feedback. जब inhibin इसको बंद कर देगा, इस जो ये इसका प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं. So, when the final product of the reaction cascade activates the total cascade, it is called the positive feedback regulation and vice versa. तो हमने नेगेटिव फीडबैक देखा. पॉजिटिव फीडबैक किसको बोलेंगे, जब जो प्रोडक्ट है वो अगेन उसको एक्टिवेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक. ओके, so the FSH acts on Sertoli cells of the gonad and cause the release of ABP and inhibin. ABP stimulates the spermatogenesis by concentrating testosterone in the seminiferous tubules wherever the तो मैंने आपको क्या कहा, जो ABP है मेनली ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है कहाँ पे, मेनली इन द seminiferous tubule, so that the spermatogenesis process starts. Okay, देन अब हम जाएंगे किसके पास, लिग्नाइजिंग हार्मोन या ICSH के पास जाएंगे. सो दिस ICSH एक्ट्स ऑन द अनदर सेल, दैट इज द लेडिक सेल्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल भी हम उसको बोलते हैं. इंटरस्टिशियल सेल भी हम उसको बोलते हैं, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स. तो वो जहाँ एक्ट करता है एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. तो इस लेडिक सेल में टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होता है एंड दिस टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज फ्रॉम दैट इंटरस्टिशियल सेल्स. सो दिस testosterone is responsible for the primary sexual characters and secondary sexual characters. ठीक है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. तो अगर हम प्राइमरी की बात करेंगे, सो प्राइमरी में क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी ऑर्गन्स. तो अगर हम प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी में आता है डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी डक्ट्स ऑफ टेस्टिस, और साथ साथ में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस भी ये टेस्टोस्टेरोन कराता है. और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ हेयर पैटर्न्स, मेल हेयर पैटर्न्स, जैसे बियर्ड, दाढ़ी आना. ठीक है, दैट इज बालों में स्कैल्प फॉर्म होना, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, जो आवाज़ का चौड़ा होना, ठीक है, मोटा होना, और बहुत सारे और जो पिच है वो लोअर होना. ठीक है, लड़कियों के जो पिच है वो हाई होता है बट उनकी जो वॉइस है वो इतना डीप नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि मस्कुलेचर पैटर्न है. ठीक है, मेल आर
मच ब्रॉडर देन फीमेल, तो मस्कुलेचर पैटर्न में तो ये डिफरेंसेस आने लगते हैं मेल और फीमेल चेंज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। तो टेस्टोस्टेरोन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल इज अ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करेंगे तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है। तो मेल जो बनता है इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनता है, ठीक, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक्स वाई बेबी में फॉर्म होगा, ठीक है। जिसके पास वाई होगा उस वाई में एक जीन रहता है SRY जीन, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन डिसाइड करता है कि वो जो बच्चा है वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। अगर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होगा तो वो मेल बनेगा, अगर टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट होगा तो वो फीमेल बनेगा, ठीक है, ओके। देन डेसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रॉटम, तो इसका दूसरा और एक फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का, जैसे कि जो हम आप इसमें देख सकते हैं मेल्स मेनली मेमल्स में जो स्क्रॉटम है उसमें टेस्टिस क्या हो जाते हैं, डेसेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट एलिफेंट में स्क्रॉटम में वो नहीं आता है, और कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं रेसलर प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। तो स्क्रॉटम में टेस्टिस वो डिसेंड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन एक रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रॉटम, ठीक है। तो पहले वो एब्डोमेन में होता है टेस्टिस, फिर स्क्रॉटम में वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस। तो वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है। देन causes the growth of hair on body but decrease the growth of hair on scalp, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पूरे बॉडी पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बॉडी पे देखो आप, लेग्स पे देखो आप, फेस पे देखो बियर्ड आ जाता है, मॉस्टेज आ जाता है, जो फीमेल में नहीं आता है, ठीक है। और जहाँ पे स्कैल्प होंगे वहाँ पे जो हेयर फॉर्मेशन है वो नहीं होता है। और साथ साथ में इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, जिसकी वजह से जो आपकी आवाज़ है, मेल की आवाज़, वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। तो वो भी इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन है उसका जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो जितना प्रोटीन फॉर्म होगा उतना आपका मस्कुलेचर क्या होगा, ब्रॉड होगा। तो मेल क्या रहते हैं हमेशा हैविंग ए ब्रॉड मस्कुलेचर एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। और बहुत सारे दूसरे प्रोसेस हैं, जैसे कि कैल्शियम अपटेक इंक्रीज हो जाता है मेल में, ताकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और ब्रॉडर बोन्स फॉर्म हो सके। सो सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं, स्टेरॉइड दिस हार्मोन इंक्रीज योर मस्कुलेचर, ओके। सो दिस इज these are the function of testosterone which is released by the Leydig cell or interstitial cell। तो इस तरीके से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होता है और आपके बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद अब एक मैंने आपको बताया पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। अब ये प्रोसेस चेंजेस आए, ठीक है, FSH रिलीज हो गया, LH रिलीज हो गया। अब इनके रिलीज को कैसे रोका जाए, ठीक है। तो इनके रिलीज को रोका जाता है, एक तो टेस्टोस्टेरोन खुद एज ए नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है, और दूसरा जो इनहिबिन है वो भी एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। अब ये इनएक्टिवेट कैसे होता है, तो पहला जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया है, टेस्टोस्टेरोन विल एक्ट एज ए नेगेटिव इनहिबिटर ऑफ द दैट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा दैट इज द हाइपोथैलेमस। तो ये नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है जब एक्सेस टेस्टोस्टेरोन होगा प्रेजेंट, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन द concentration of testosterone increases beyond the threshold level, या आप जिसको बोलेंगे optimum level, ठीक है। So this testosterone will uh, negatively
inhibits the anterior pituitary gland and the the hypothalamus from releasing the gonadotropic releasing hormone and the FSH and LH, that is the gonadotropic गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स इनको इनहिबिट कर देता है, कहाँ से, इंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, ताकि वो ये रिलीज़ ना कर सके और इनका जो रिलीज़ है वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये एक काम करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। और साथ साथ में जो मैंने आपको यहाँ पर इनहिबिन बताया, इनहिबिन ऑल्सो एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी by inhibiting the anterior pituitary by secreting by releasing the hormone that is the FSH and LH, ठीक है। तो इनके सिक्रेशन को वो रोक देता है, जिससे क्या होता है वो फिर से मेंटेन हो जाता है, ठीक है। सो testosterone and inhibin are responsible for the inhibition of the anterior pituitary, so that the FSH and LH or ISHs is now not released from the anterior pituitary। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हार्मोनल कंट्रोल होता है किसका, मेनली जो स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जब प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाता है तो जो गोनाडोट्रोपिक रिलीज हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हाइपोथैलेमस, मैं आपको लिख देता हूँ, hypothalamus it starts secreting the hormone that is the gonadotropic releasing hormone। तो वो gonadotropic releasing hormone मेनली जो anterior pituitary है वहाँ पे एक्ट करता है and causes the anterior pituitary to release the hormone that is the gonadotropin, ठीक है। gonadotropin is composed of two hormone that is the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone या interstitial stimulating हार्मोन। अब पहले हम देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटर्स इन द टेस्टिस एंड मेनली एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स। तो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था सर्टोली सेल्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो वहाँ पे आपको कुछ सपोर्टिंग सेल्स मिल जाएंगे। तो दीज आर द सेमिनिफेरस सर्टोली सेल्स। तो ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है एंड causes the Sertoli cells to secrete some proteins or hormones that is the inhibin, ABP एंड एक्टिविन। इनहिबिन का हम देखेंगे बाद में, ABP दैट इज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एक्टिविन। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मेनली जो टेस्टोस्टेरोन है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है। एक्टिविन क्या करता है, एक्टिविन इस एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके इस सर्टोली सेल का और प्रोलिफरेशन कराता है, ताकि वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको सपोर्ट कर सके और इसको इनिशिएट कर सके। तो FSH मेनली सर्टोली सेल पे एक्ट करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाके एक तो पहले वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट कर देता है, इनिशिएट कर देता है। देन उसके साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा उस टेस्टिस में, उसको कंसंट्रेट करने के लिए वो कुछ प्रोटीन्स भी वहाँ पे या कुछ हार्मोन्स भी वहाँ पे रिलीज़ करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अंडर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इंक्रीजेस, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम LH की बात करेंगे या इंटरस्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करेंगे, तो मेनली मेल में हम उसको इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। तो वो जाके एक्ट करेगा कहाँ पे, लेडिक सेल पे। मैंने आपको दिखाया था लेडिक सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, जो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल साइड पे, दैट इज द इंटरस्टिशियल सेल्स या जिसको हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। तो वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और लेडिक सेल्स को मेनली इंड्यूस करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। जब वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा तो इंटरस्टिशियल सेल में ही क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, दिस टेस्टोस्टेरोन विल एक्ट ऑन डिफरेंट सेल्स, ठीक है। या टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो हमने इसमें देखा था प्राइमरी सेक्सुअल फंक्शंस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। तो प्राइमरी में सबसे पहले आता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, ठीक है। मेनली एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होके वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाके क्या करता है, स्पर्मेटो जो जेनेसिस जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करता है। देन साथ साथ में वो जो अगर हम डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे जो एक्सरी डक्ट्स हैं टेस्टिस के, जैसे कि एपिडाइडमिस है या
एपिडाइडमिस है, वासा डिफरेंस है, वासा एफ्रेंशिया है, उनका डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। तो वो डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जैसे कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेल हेयर पैटर्न्स है, ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस है, मस्कुलेचर है। तो ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जैसे स्क्रॉटम में टेस्टिस का डिसेंट होना, ये भी दैट इज़ ऑल्सो ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। पेनिस फॉर्मेशन, दैट इज़ ऑल्सो ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ड्यू टू द दिस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हो गया इनका जो मेन फंक्शन है, कैसे वो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो बट ये जो चीज़ें होती है वो आफ्टर प्यूबर्टी होती है और मेनली गोनाड्स में होती है, दैट इज़ द टेस्टिस में होती है। तो जब जो लेवल है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, तो अब इन हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है, जब इसका लेवल जो थ्रेशोल्ड से वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जाके मेनली या तो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कर देगा या तो हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर देगा, ताकि जो ये हार्मोन्स है, दैट इज़ द गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो रिलीज़ ना हो, या ये गोनेडोट्रोपिन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, वो रिलीज़ ना हो। और साथ साथ में इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि ये जो LH है वो इसको प्रोड्यूस कर रहा था, बट ये इसके प्रोडक्शन को ही क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे दूसरा है इनिबिन जो प्रोड्यूस हुआ था सेटोली सेल में, ये जाके क्या करता है, जब इनका कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन और जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का जो लेवल है वो थ्रेशोल्ड से बढ़ जाता है, तो ये इनिबिन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके इनहिबिट कर देता है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। अब जब टेस्टोस्टेरोन कभी कभार जब कम लेवल में प्रेजेंट होगा, तो ये मेनली जो गोनेडोट्रोपिक जो ब्रेन है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, या जो मेनली जो दूसरे जो ऑर्गन्स है हाइपोथैलेमस में, या दूसरे जो पार्ट्स है हाइपोथैलेमस में, उसको इनिशिएट करता है और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके प्रोडक्शन से और प्रोड्यूस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। जैसे कि एक्टिविन है, एक्टिविन एफएसएच की रिलीज को इंक्रीज कर देता है, तो इट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव फीडबैक। तो इस तरीके से क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका रेगुलेशन होता है। So this is all about the hormonal control of spermatogenesis. In the next lecture, we will discuss the hormonal control of oogenesis. Hope you understand. Thank you.